Ahmedabad is home to some of the most distinctive educational initiatives in post-independence India, and the National Institute of Design in one of them. NID indeed holds a place of its own, not only as the pioneer of design of education and practice in the country, but also for its unique way of teaching. Its faculty and students have consistently raised the bar of excellence in this field. I am sure the students completing their studies today will continue this great tradition. Design can mean different things to different people, but in essence, it is a very simple concept. An example of design thinking is the invention of the wheel, and it changed the world forever. Design can also produce something that is visually pleasing. For example, the invitation for the Republic Day at home ceremony last month was designed by the NID. It featured visual elements associated with South India and was very much appreciated by everyone. The concept of design has many aspects, and the NID has excelled in all of them, with emphasis on design as a service for the betterment of society. There are many problems all around us, and many of them request not great requests but design tweaks. Creative thinking can lead to solutions that can improve the ease of living, especially for the underprivileged communities. To put it differently, design is often a less noticed but crucial factor in social and economic development of our country. Traditionally, in our country, design has been interwoven in the fabric of everyday life in all communities. Some of the historical facts are well known, and I am happy to note that the NID has done an exemplary work in studying the lesser known design traditions. I am sure there is much more to be done in this regard. We need to study and document knowledge systems, including design systems of more traditional communities. Their cultural practices, I believe, hold the key to some of the challenges that confront the world in the 21st century. Therefore, revitalizing the historical solutions drawn from India's diverse cultures and leveraging them for innovation will benefit not only the nation but will also contribute to global progress. ये समय है स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का, हमें उसको अनुसरना है। आज के समय में डिमांड और जॉब पैटर्न बदल रहे हैं, तब हमें अपने कुशलता को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। उद्योग, संशोधन एवं कौशल्य विकास संस्था के लिए समय के साथ सुसंगत रहना और बदलते वैश्विक प्रवाह को समझना अति आवश्यक है। कृषि, उद्योग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो या बिजनेस, आज सभी क्षेत्र के विकास में डिजाइनिंग की अहम भूमिका है। एनआईडी के 5 दशकों से अनेक प्रतिष्ठित डिजाइनर्स की राष्ट्र को भेंट दी है। एनआईडी इस तरह राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान देते आ रहा है। कुछ ऐसे ही और युवा डिजाइनर्स यहां से डिग्री प्राप्त करके विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने विकसित हो रहे हैं। आज एनआईडी के कुछ युवा डिजाइनर्स को बेस्ट प्रैक्टिस के लिए शांता केशवम प्राइज दिया गया है। डिजाइनिंग क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए एनआईडी के पूर्व विद्यार्थी को प्राइड ऑफ एनआईडी अवार्ड से सम्मानीय राष्ट्रपति जी के कर्म कमलों से सम्मानित किया गया है। उन सभी को मैं बधाई देता हूं। यह संस्थान आधुनिक समय की समस्याओं को
इनोवेटिव सॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के स्टार स्तंभ को युवा शक्ति को विशेष महत्व दिया है। प्रधानमंत्री जी को भारत के युवाओं की स्किल, विल और जिल पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के दम पर उन्होंने 15 अगस्त के अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं, इनोवेटर्स और डिजाइनर्स को डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया था। यह केवल एक स्लोगन नहीं बल्कि देश में एक नई इकोनॉमी के निर्माण का मार्ग भी है। आज के युग में क्लाइमेट चेंज से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक की व्यापक चुनौतियों का सामना करने में भी डिजाइनिंग क्षेत्र इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम भूमिका निभा सकते हैं। आज दुनिया जीरो इफेक्ट डिजाइन का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी जीरो इफेक्ट को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिटेक्चर समेत हमारे पास डिजाइनिंग की भी भव्य कला विरासत है। डिजाइनिंग की हमारी इस विरासत को आधुनिक समय के साथ जोड़कर पुनः विकसित करने का एक बड़ा अवसर आप सभी के पास है। आप सभी वो भाग्यशाली युवा हैं जिन्हें 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का सौभाग्य मिलेगा। आपके समक्ष भविष्य के अनेक अवसर हैं। हमें विश्व को स्मार्ट एंड स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन प्रदान करना है। हम सबको मिलकर भारत को विश्व में मानव शक्ति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनना है। सीखने की, सिखाने की और आगे बढ़ने रहने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। जीवन के हर मुकाम पे आप सब सबल बने, यही शुभकामना के साथ मैं अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय।